بابر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے قاسم بیگ پر نظریں جما دیں اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ قاسم بیگ فوراً ہی لپک کے بابر کے پاس پہنچا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رندی ہوئی التجا بھری آواز سے بولا، میرے شہزادے، خدا آپ کو ہمت عطا فرمائے، اب آپ ہی ہم لوگوں کا سہارا ہیں۔ دشمنوں کے لشکر تین طرف سے یلغار کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو فوراً ہی اندجان کے لیے روانہ ہونا چاہیے، اپنے وفادار بیگوں کو قلعے میں بلا لینا چاہیے۔ احسان دولت بیگم سمجھ گئی کہ غم کے ان لمحات میں بھی امور دنیا سے غافل نہیں رہا جا سکتا، گریہوزاری کے لیے وقت ہی نہیں۔ اس نے قاسم بیگ سے کہا، اٹھیے، وفاداری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ مرزا بابر کے ساتھ جائیے، سب لوگ یہ حویلی چھوڑ دیں، سب قلعے کو چلے جائیں۔ بابر جیسے بت بن کے رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے جوں توں کپڑے پہنے، خاموشی ہی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پھولتے پھلتے اشجار، یہ والد مرحوم کا تعمیر کرایا ہوا سنگ مرمر کا حوض، یہ سب بھی اس شخص کی یاد میں مغموم و ملول ہیں جو اب کبھی بھی ان کے پاس نہ آئے گا۔ ناشپاتی کے یہ درخت تو خود مرزا عمر شیخ کے لگائے ہوئے ہیں، ان پر پھل آ گئے ہیں، کچھ ہی دنوں میں یہ پک بھی جائیں گے، لیکن جس نے یہ درخت لگوائے تھے کبھی بھی ان پھلوں کا ذائقہ نہ چکھ سکے گا۔ وہ لوگ پختہ راستے سے گزرنے لگے تو بابر ایک بار پھر اپنے والد کی یاد سے تڑپ اٹھا۔ راستے پر پتھر انہی کے حکم پر تو جڑے گئے تھے، اور سامنے دوری پر نظر آتا ہوا قلعہ بھی تو انہی کا تعمیر کرایا ہوا ہے، اور اب وہ دنیا سے اٹھ چکے ہیں۔ نہیں، بابر کی روح کو بخوبی احساس تھا کہ اب وہ اپنے والد کو کبھی بھی نہ دیکھ سکے گا، نیز یہ کہ اس کا نقصان ناقابل تلافی ہے۔ اچانک اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آخر کار روح کو مضطرب کرتے اور ساتھ ہی ساتھ تسلی دیتے ہوئے اشک بہے نکلے۔ وہ لوگ قلعے، جس کے ارد گرد کی خندقیں بھی گہری تھیں اور فصیل بھی بلند، تلے اوپر 11 ردے رکھے گئے تھے۔ بابر نے غیر شعوری طور پر شمار کیا۔ وہ لوگ قلعے کے قریب پہنچے تو اس کے صدر دروازے سے 5 گھڑ سوار ان کی طرف آئے۔ بھورے سے گھوڑے پر سوار، چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور منگول ناک نقشے والا بیگ، جو کہ اس کی والدہ کا رشتہ دار تھا، آگے تھا۔ شیرم بیگ توغانی نے ان لوگوں کے پاس پہنچ کر بابر کے چہرے پر منڈلاتے ہوئے غم کو دیکھا تو وہ گھوڑے سے نیچے کود پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو نہ آئے، لیکن اس نے سرد آہ بھری اور کہا، مجھے یقین ہی نہیں آیا شہزادے، تو یہ سچ ہے کہ ہم اپنے سہارے سے محروم ہو گئے؟ آہ بے رحم دنیا، آپ نے کس سے سنا؟ قاسم بیگ نے پوچھا۔ اس سانحے کو ابھی راز ہی رہنا چاہیے۔ شیرم بیگ نے اپنا گریبان پکڑ لیا۔ مشیت ایزدی کو بھلا کون جان سکتا ہے؟ میرا ایک کبوتر اڑتے اڑتے اچانک غائب ہو گیا تھا، اسے کس نے مار گرایا؟ میں نے سوچا اور چھت پر چڑھ گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ کبوتر واپس لوٹا اور آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے پروں کے نیچے کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا، جسے نکال کر میں نے کھولا۔ اسی سے یہ افسوسناک خبر ملی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے لکھا تھا اس پرچے کو، شاید آسمانی فرشتوں کی تحریر ہو۔ شیرم بیگ نے بابر کے گھوڑے کی کاٹھی پر ہاتھ رکھا اور منہ قریب لے جا کر دبی آواز سے کہا، میرے مرزا، قلعے کے اندر تشریف نہ لے جائیے، خطرہ ہے۔ یہ بات قاسم بیگ نے بھی سن لی۔ عمر شیخ کی حکمرانی میں شیرم بیگ کوئی خاص اونچا عہدہ نہیں حاصل کر سکا تھا اور ناراض رہتا تھا۔ اب وہ اوروں ہی سے مرزا بابر کے آڑے آ کر اس کا اعتماد حاصل کرنے کی فکر میں تھا تاکہ عہدے میں ترقی ہو جائے۔ قاسم بیگ نے اس بات کو بھانپ لیا اور پرسکون لہجے میں کہا، میرے شہزادے، قبل از وقت ڈرنا کیا مانی؟ ہمیں جلد از جلد قلعے میں پہنچ کر بیگموں کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ شیرم بیگ کو زمین پر کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار قاسم بیگ سے گفتگو کرنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ وہ اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور سخت لہجے میں بولا، جناب قاسم بیگ، ابھی آپ کو ذرا بھی علم نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے وفادار بیگوں نے خوجند کو دشمن کے حوالے کر دیا، اسفرا کو بھی، مرغیلان کو بھی۔ بابر اتنے زور سے چیخا کہ اس کا جسم لرز اٹھا۔ کب؟ ابھی خبر موصول ہوئی ہے۔ دشمن کے بڑے بڑے لشکر چاروں طرف پھیلتے جا رہے ہیں، قوا کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب اندجان کی باری ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وفادار بیگ اندجان کے ساتھ ہی ساتھ مرزا بابر کو بھی دشمنوں کے حوالے کر دیں؟ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں۔ شیرم بیگ اپنے گھوڑے کو بڑھا کر بابر کے گھوڑے کے پاس لایا اور اس کی لگام تھام لی۔ میرے مرزا، میں آپ کا ماموں ہوں، آپ کا وفادار ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کو یہاں سے نکال کر لے چلوں۔ بابر ٹھیک سے سمجھ نہ سکا کہ شیرم بیگ اس سے کیا کرنے کو کہہ رہا ہے، لیکن اس کی غمزدہ روح اور تشنگی سے ماہیے بے آب جسم نے اس وقت بند اور گھٹن بھرے قلعے کی بجائے کشادہ کھلے میدان میں رہنا بہتر تصور کیا۔ یہی سبب تھا کہ بابر نے مخالفت نہ کی۔ قاسم بیگ نے البتہ دوبارہ اعتراض کیا،
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली एपिसोड से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। मेरे मिर्जा, आपकी वालिदा साहिबा ने तो कुछ और ही करने की हिदायत की थी। कत्लोग निगार खानुम सिपा सालार कब है? शेरम बेग ने उसकी बात काट दी और जिद्दीपन के साथ बाबर के घोड़े की लगाम पकड़कर उसका रुख मोड़ दिया। लेकिन कासिम बेग को भी अपनी बात पर अड़ना आता था। वो अपने घोड़े को आगे बढ़ाकर बाबर के करीब पहुंचा, उसके घोड़े की अयाल पर हाथ रख दिया और कहा, आपकी वालिदा साहिबा हमारी मलिका आज शाह मरहूम की तदफीन के बाद अंजजान के लिए रवाना हो जाएंगी। कल वो यहाँ पहुंच जाएंगी और आपकी नानी जान भी किले में क़याम के लिए आना चाहती हैं। ये लोग आखिर आपको ढूंढेंगी कहाँ? बाबर को कुछ होश आ गया। उसने शेरम बेग से पूछा, तो हमारा किधर जाने का कस्द है? शेरम बेग ने बाबर के कान के करीब मुंह करके कहा, अलाउ ताऊ की तरफ चलेंगे, फिर औश, बाद में शायद औसगंत। बाबर सफर के इस रास्ते को कासिम बेग से छुपाना नहीं चाहता था। उसने चुपके से उससे कहा, हम लोग औश के रास्ते में किसी जगह पर मिल जाएंगे, वालिदा साहिबा को बता दीजिएगा। मेरे शहजादे, पहले तो मैं किले में जाकर बेगों से सलाह मशवरा करूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि आखिर इन लोगों के इरादे क्या हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे मोहतरम उस्ताद ख्वाजा अब्दुल्ला से मुलाकात करें, जो हुक्म। और कासिम बेग अपने घोड़े को मोड़कर किले के फाटक की तरफ चल दिया। उन लोगों की बहस पर फसील किले के अंदर एक गंगोरे से कोई फरबा अंदाम गठीला सिपाही नजर रखे हुए था। उसने कासिम बेग को तेजी से फाटक की तरफ बढ़ते देखा तो फाटक के ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरा और अपने मालिक अहमद ततबल के पास चला गया। खुबानियों के एक वसी बाग के वस्त में टाइलदार गुंबद का कुशादा हम्माम बना हुआ था। बाग का मालिक याकूब शदीद गर्मियों के अय्याम में इसी हम्माम के एक कमरे में, जो अपनी अंदरूनी आराइश की बिना पर किसी महल के दीवान खाने से मुशाबे था, आराम किया करता था। उस वक्त इस कमरे में मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए मखसूस जगह पर अहमद ततबल बैठा हुआ था। उसने तोंबी के प्याले में, जिस पर जंगली गुलाब की पंखड़ियां बनी हुई थीं, कबीज उंडेला और इसे पीकर हथेली से अपनी ठोड़ी पहुंची। परवरदिगार मेरा गुनाह माफ फरमाए, मैंने रोजा तोड़ दिया, उसने पुरसुकून लहजे में कहा। यहाँ तक आते आते जुबान में कांटे पड़ गए, बेहोश होकर घोड़े से गिरते गिरते बचा। आज आपको इस गुनाह की इजाजत है। याकूब बेग ने खीसें निकाल दी। अशद जरूरी हो तो इसे माफ किया जा सकता है। आपने बड़े मुश्किल काम का बेड़ा उठाया है मोहतरम बेग, लेकिन अगर आपकी किस्मत का सितारा चमक उठा और मिर्जा जहांगीर तख्त नशीन हो गए तो उनकी निगाह में सबसे ज्यादा मोतबर आप ही होंगे। आप ही तो वजीर आजम होंगे, दुरुस्त है ना? अहमद ततबल अपने इस शानदार मुस्तकबिल का तसव्वुर करके दिल ही दिल में खुशी से फूला न समाया। याकूब बेग भी मुस्कुराने लगा। उसकी ये मुस्कुराहट अगले 2 दांतों के गायब हो जाने की वजह से कुछ और भी मज़ा का खेज मालूम हो रही थी। उसकी आंखें अलबत्ता गौर से अहमद ततबल का जायजा ले रही थीं, जैसे कह रही हूँ, तुम कहीं ये तो ना भूल बैठोगे कि इतने पुरखतर काम में मैं भी तुम्हारा हाथ बटा रहा हूँ। अहमद ततबल चौकन्ना हो गया। अरे बेग साहिब, आप और मैं दोनों ही मुगल हैं। वक्त आ गया है कि फरगाना में बरलासों की हुकूमत खत्म कर दी जाए। अब तो हमारी बारी आ गई है। हमारे जो मुगल बेग हैं ना, इनमें आपको मैं सबसे ज्यादा मुमताज मानता हूँ। खुदा के फजलो करम से मैं वजीर आजम बन गया, तब भी आपको मेरे वाहिद दोस्त और उस्ताद की हैसियत हासिल रहेगी। आमीन, याकूब बेग ने मुतमईन होकर कहा और अपनी तरशी तरशाई कच्ची दाढ़ी पर हाथ फेरे। इतने में अहमद ततवल ने प्याले को एक तरफ खिसका दिया और दरवाजे की तरफ मुड़कर आहट पर कान लगा दिए। उसका सिपाही अंदर दाखिल हुआ और कोरनिश बजा लाया। सोयुंची, मेरे आका सोयुंची, उसने सीधे खड़े होकर कहा। मिर्जा बाबर किले में दाखिल नहीं हुए, मुड़कर कहीं चले गए। शेरम बेग के साथ? जी हाँ हुजूर। अहमद ततबल के लिए वाकई ये खुशखबरी ही थी। उसने चरमी थैली से एक अशरफी निकालकर दहलीज पर फेंक दी। गठीले सिपाही ने सिक्के को फौरन ही अंदरूनी जेब में रख लिया और शुक्रिया अदा करने के तौर पर दोबारा कोरनिश बजा लाया। फिर वो अहमद ततबल के इशारे पर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजे को कस के बंद कर दिया। अहमद ततबल अंदजान पहुंचते ही सीधा याकूब बेग के यहाँ जाके मुकीम हो गया था, लेकिन मिर्जा उमर शेख के इंतकाल की खबर पहले ही उसे नहीं बल्कि शेरम बेग को दी थी। शेरम बेग जल्दबाज और बाआसानी मुश्तइल हो जाने वाला जो था, यही नहीं वो कुछ सादा लौ भी था। अहमद ततबल ने खुद को पसे पर्दा रखने के लिए कबूतर के जरिए जो पर्चा भेजा था उस पर वो यकीन कर बैठा। आपके मशवरे से तैयार किया जाने वाला मंसूबा कामयाब रहा। इससे बेहतर नतीजे का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अहमद ततबल ने मेजबान से एहसानमंदी के साथ कहा, जी हाँ, अब शेरम बेग अपने भांजे को खतरे से दूर ही दूर रखेगा।
वो एड़ी चोटी का पसीना एक कर देगा कि किसी तरह बाबर का सबसे मोतबर बेग बन जाए, उसे अलाव तलाव के पार ले जाएगा। शुक्र खुदा। और हम अब बाबर के भाग खड़े होने की खबर रियाया तक पहुंचाएंगे। कहेंगे कि वो खतरे से खाइफ होकर भाग खड़े हुए। लोगों को मालूम हो जाएगा कि बुरा वक्त पड़ा तो बाबर अपने वतन अंदजान को छोड़ के कैसे फरार हो गए। इसके बाद मिर्जा जहांगीर को तख्त पर बिठा दिया जाएगा। याकूब बेग अपनी दाढ़ी पर मुसलसल हाथ फेरे जा रहा था। अफवाहें फैलाने के लिए बेहतरीन जगह है बाजार, उसने कहा। कुछ मौजू सौदागर मेरे असर में हैं, वही करेंगे ये उल्टी सीधी बातें। जी हाँ, पर किसी को भिनक भी नहीं लगनी चाहिए कि अफवाहों का आगाज हमने किया है। आप मुतमईन रहिए अहमद बेग साहब, हमें राज को राज रखना खूब आता है। अंदजान में वैसे भी एक से एक बुरी अफवाह ने कयामत की खलबली मचा रखी थी। दुश्मनों के लश्कर करीब से करीब तर आते जा रहे थे, जिससे लोगों पर बुरी तरह खौफ तारी था, और जहां खौफ की हुक्मरानी हो वहां अफवाहों का बाजार गर्म हो ही जाता है। लोग कानाफूसी कर रहे थे। बादशाह कराड़े पर से दरिया में कूद पड़ा, और अब आज नहीं तो कल शहर पर दुश्मनों का काबिज हो जाना यकीनी है। फिर एक और अफवाह उड़ी। मिर्जा बाबर डर के मारे भाग खड़े हुए, हमें मुकद्दर के हवाले करके भाग गए। दिन का वक्त था, बाजारों में खरीदो फरोख्त उरूज पर थी, लेकिन अचानक दुकानें यके बाद दीगरे बंद होने लगी। ठीक से कोई भी नहीं जानता था कि अफवाहें उड़ कहां से रही हैं, लेकिन लोग उन्हें सुनते और अपनी तरफ से खूब नमक मिर्च लगाकर और भी ज्यादा खौफनाक बातें जोड़ जोड़ के दूसरों को सुनाते। आखिर में नौबत इस अफवाह तक पहुंच गई कि आखसी पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और शाह फरगाना को कराड़े पर से दरिया में फेंक दिया गया। मुखबर जल्दी जल्दी दारोगा शहर के पास जा जाकर उसे बाजारों में सुनी हुई ताजा खबरें सुनाते थे। बेगों में भी खलबली मच गई। ये लोग कासिम बेग से शाह के इंतकाल की खबर सुनकर खौफ से पूरी तरह मगलूब हो गए, और इस फिक्र ने कि अब तख्त पर कौन बैठेगा उन्हें जंग की बजाय दीगर बातें सोचने पर मजबूर कर दिया। नई नई उल्टी सीधी अफवाहें सुन सुन के दारोगा शहर अजवान हसन का दिमाग चकरा गया। ये अफवाहें तो बेबुनियाद हैं, पर जाने असलियत क्या है। बेग एक जगह जमा हुए लेकिन किसी फैसले पर न पहुंच सके। बात यह है, साहिबान के तकदीर ने हमसे मुंह फेर लिया है। दारोगा शहर ने झेंकना शुरू किया। कले के बाहर दुश्मन खड़े हैं और कले के अंदर भगदड़ मची है। न हमें कुछ मालूम है, न हम किसी बात के लिए तैयार हैं। साफ जाहिर है कि मिर्जा बाबर कले में दाखिल हुए बगैर ही बिला सबब नहीं चले गए, तो फिर हमें भी भाग खड़े होना चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला ने तंजिया लहजे में पूछा। ख्वाजा अब्दुल्ला को अपने स्याह बालों और इल्मो फजल की बिना पर शोहरत हासिल थी, और वो अंदजान के बेगों का बहुत ही बाअसर पीर था। खुद मिर्जा बाबर भी अपने आप को उसका मुरीद तसव्वुर किया करता था। इसलिए अजून हसन स्याह रीश ख्वाजा को नाशाइस्तगी से जवाब न दे सका और खामोश ही रहा। मिर्जा बाबर को अंदजान से ज्यादा दूर निकल जाने से कबल ही वापस बुला लिया जाना चाहिए। कासिम बेग ने ख्याल जाहिर किया। मैं मिर्जा बाबर से बखूबी वाकिफ हूँ। ख्वाजा अब्दुल्ला ने हाजरीन पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। नहीं, वो यहाँ से डर के भागे नहीं हैं। वो तो सिर्फ हमारी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। दरअसल फसादी और साजिशी लोग अवाम में इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि शाह के इंतकाल पर मलाल की खबर हम तक पहुंचने से कबल ही बाजारों तक पहुंच गई। दुरुस्त, सारी बात बिल्कुल दुरुस्त। अजून हसन हैरत में पड़ गया कि ख्वाजा अब्दुल्ला ने वहीं उन सब के दरमियान रहते हुए भी मिर्जा बाबर के ख्यालात का अंदाजा लगा लिया। उसने सोचा कि ख्वाजा तो सही मानों में वली हैं वली। लगता है कि हमारे पीर साहिब को तो सब कुछ वाज़े तौर पर मालूम है। अजून हसन ने मसनूई एहतराम के साथ कहा। आइए हम लोग वैसा करें जैसा कि मौलाना फरमाएं। मुझको वाज़े तौर पर बस इतना ही मालूम है, ख्वाजा अब्दुल्ला ने धीरे से कहा, कि सबको मुत्तहिद होकर मिर्जा बाबर की खिदमत करनी चाहिए, और तभी हम जिंदा बच सकेंगे, और हम में से किसी का बाल भी बेका ना होगा। दुरुस्त, ये भी बिल्कुल दुरुस्त, अजून हसन ने सोचा। और कितने यकीन के साथ कह रहे हैं ख्वाजा अब्दुल्ला ये सारी बातें। फिर भी खौफ तो महसूस ही होता है। अगर हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि ख्वाजा अब्दुल्ला की बात सच साबित हुई और बाबर शाह फरगाना बन गए, तो दारोगा शहर की आज की इस हिचकिचाहट को क्या मानी पहनाए जाएंगे? क्या खुद उसी के लोग ही उसकी इस हिचकिचाहट के मुतालिक मिर्जा बाबर के कान न भरेंगे? तब क्या वो दारोगा शहर के ओहदे से हाथ न धो बैठेगा? नहीं नहीं, अजून हसन, तुमने जो रास्ता मुंतखब किया है इससे ना हटो। मोहतरम पीर, आपका हुक्म हो तो मैं खुद मिर्जा बाबर की खिदमत में हाजिर हूँ। अजून हसन ने कहा। मैं जाके उन्हें सारे बेगों की तरफ से वफादारी का यकीन दिलाऊंगा और दरखास्त करूंगा कि वो कले में आ जाएं। आपके इरादे काबिल सताइश हैं दरोगा साहिब, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस ओहदे पर मामूर हैं तब तक आपको चाहिए कि शहर में फसाद को कुचलें, फसादियों के अड्डे का पता लगाकर इसे नीस्तो नाबूद कर दें,
और अंदजान के दिफा के लिए पता लगा कर इसे नीस्तो नाबूद करें और अंदजान के दिफा के लिए जरूरी तैयारियां भी करें। आप अपने इन्हीं कामों की बिना पर मिर्जा बाबर की इनायात के मुस्तहिक हो सकते हैं। पीर ने वाकई अजून हसन के दिल की बात भांप ली थी। मौसम गर्मा के आफताब ने जमीन व आसमान में आग सी लगा रखी थी। घोड़ों के सुमों से ऊपर उठती हुई धूल लपटों की तरह घुड़सवारों के चेहरों को झुलस रही थी। हवाएं यूं साकत थीं कि कोई खफीफ सा झोंका भी नहीं चल रहा था। बाबर का तमाम जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। प्यास की शिद्दत से मुंह बुरी तरह खुश्क हो गया था और कल ऐन उसी वक्त वो अंदजान साए के किनारे कितने मजे से वक्त गुजार रहा था। सरसब्ज़ो शादाब जागीर की साफ सुथरी फजा, शफाफ पानी, हवादार बरामदा, शरारतें, सब कुछ उस माजी का जुज बन चुका था जो जैसा कि उस वक्त उस तपते और धूल से अटे रास्ते पर महसूस हो रहा था, पीछे बहुत पीछे छूट गया था। उसे लग रहा था जैसे परियों की किसी कहानी का सा कोई बगुला अचानक उठा था जिसने उन्फ़ान शबाब की पुरमुसर्रत जिंदगी से उसका रिश्ता तोड़ दिया था और अब उसे तिनके की तरह उड़ाए लिए जा रहा था। वो उड़ती हुई रेत उसी बगुले की रेत थी। वालिद को दरिया में गिराने वाली ताकत उसी बगुले की ताकत थी और उसके 50 हमसफरों की वो धुंधली धुंधली परछाइयां भी उसी बगुले की परछाइयां थीं जिसने उन सबको अपनी मुहीब बाहों में जकड़ रखा था। भूख की शिद्दत से सर चकरा रहा था। लग रहा था जैसे कोई दीवान लोगों को सीधे राह से भटका रहा है। वो औसगंत जाने वाले रास्ते से नमाजगाह तक पहुंच गए। अब उन्हें बर्फपोश चोटियों वाले पहाड़ नजर आ रहे थे। बाबर की आंखों को ठंडक महसूस होने लगी। उसने घोड़े को एड़ लगाई और खुश्क लबों को बमुश्किल खोलकर शेरम बेग से कहा, आप लोग रफ्तार तेज कीजिए, रफ्तार तेज कीजिए, कोई कासिद आ रहा है, कुछ देर इंतजार कर लें। शेरम बेग ने पीछे देखकर कहा। कासिद ने आकर बाबर को ख्वाजा अब्दुल्ला का खत दिया। बाबर ने गोल लिपटे हुए खत पर बंधा हुआ रेशमी फीता खोलकर पर्चे को नौयान कोकलताश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पढ़िए। खत में अंदजान के बेगों की वफादारी का तज़किरा था। एहतियातन इशारों इशारों ये भी लिखा था कि शहर में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि गोया मिर्जा बाबर भाग खड़े हुए हैं। नीज ये कि इन अफवाहों के जरिए फसादी लोग अवाम को बाबर से दूर करना चाहते हैं। मेरे शहजादे, इन्हीं फसादियों से तो मैं आपको महफूज रखना चाहता था। शेरम बेग ने बाबर से कहा, वहां के हालात बहुत खराब हैं, बहुत ही खराब। कला उन लोगों का अड्डा बन गया है, वहां वापस ना जाएं। मिर्जा, अगर बेग आपके वफादार हैं तो उन्हें यहीं आने दीजिए। डर के आबाई वतन से भाग खड़े हुए? हाँ, ये अफवाह ऐसी ही थी कि उसे एक कान से दूसरे कान तक, एक गांव से दूसरे गांव तक फैलाया जाता। नहीं, मैं भाग खड़े होने का कतई इरादा नहीं रखता। और बाबर ने अपने घोड़े का रुख पीछे की तरफ मोड़ दिया। ये महज एक चाल है शहजादे, यकीन मानिए। मैं खुद ही सारी बातों की तस्दीक कर लूंगा। मैं उन लोगों को दिखा दूंगा कि बुज़दिल नहीं हूं। सब लोग वापस चलें, अंदजान को वापस चलें। बाबर ने लगाम ढीली छोड़ के घोड़े के चाबुक रसीद कर दिया। घोड़ा तेजी और गजबनाकी के साथ दौड़ने लगा। हवा के एक झांका बाबर के सीने से टकराया जिससे उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसे लगा कि वो मुहीब बगुला पीछे छूट गया, रास्ते में कहीं काफूर हो गया। आफताब गुरूब होने को था तो वो लोग किले के अंदर दाखिल हो गए। शाम को जिन रास्तों पर उमूमन बड़ी चहल पहल नजर आया करती थी उन पर उस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। सारी दुकानें बंद थीं। चारों तरफ वीरानी सी बरस रही थी। दहशत ज़दा शहर अपने डरबे में दुबका हुआ था। बाबर की हिफाजत की तरफ से मुसलसल फिक्रमंद शेरम बेग ने सिपाहियों को इशारा किया कि वो बाबर को, जो अपने घोड़े पर आगे आगे चल रहा था, घेरे में ले लें। बाबर को यह देखकर ऐसा लगा कि जैसे उसे कैद कर लिया गया हो, जैसे उस बगुले ने एक बार फिर बाजुओं में जकड़ लिया हो। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिसार को तोड़कर दोबारा आगे निकल गया। शेरम बेग ने एक बार फिर हिकमत अमली दिखाई। उसने बाबर के पहलू बपहलू चलने की कोशिश की ताकि लोग देख लें कि वो अपने भांजे को नजर बद से महफूज रखना चाहता है, लेकिन नौयान कोकलताश ने उसके घोड़े की लगाम थाम ली। बेग साहिब, आप शहजादे को आगे आगे ही चलने दीजिए। अवाम को मौका दीजिए कि वो वली अहद को देखकर मुतमईन हो जाएं। लोग अपनी खिड़कियों के शगाफों से झांक रहे हैं। वो देख लें कि फसादियों की उड़ी हुई अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद थीं और कहीं बागियों ने कहीं शगाफ से तीर चला दिया तो उन्हें इसकी जरूरत हो ही नहीं सकती। वली अहद आगे आगे ही रहना चाहते हैं। अल्लाह उनका निगहबान है। और यूं बाबर दूसरे घुड़सवारों से आगे आगे चलता हुआ किले के करीब पहुंचा। फौरन ही सदर दरवाजा पूरी तरह खुल गया और ख्वाजा अब्दुल्ला, कासिम बेग और शाही सिपा सालार उसके खैर मकदम के लिए बाहर निकले। बाबर ने घोड़े से नीचे उतर के अपने उस्ताद को सलाम किया।
उसका दिल भर आया और रुखसारों पर आंसू बह निकले।